اسی خداوند نے میرے عزیزو آپ سب کو کل کائنات کے بادشاہ خداوند یسوع مسیح کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ ہماری کلیسیا کا لٹوریا سال 34ویں اتوار یعنی خداوند یسوع مسیح کل کائنات کے بادشاہ کی عید پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اتوار جو ہے وہ لٹوریا سال کا آغاز ہوگا۔ ہم آمد کی پہلی کینڈل روشن کر کے لٹوریا سال کا آغاز کرتے ہیں۔ آج پوری کائنات خداوند یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کا اقرار کرتی ہے کہ وہ کل کائنات کا بادشاہ ہے، وہ میرے اور آپ کے خاندان کا بادشاہ ہے، وہ خداوندوں کا خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بائبل مقدس اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ وہ لشکروں کا بادشاہ ہے، وہ خداوندوں کا بادشاہ ہے، وہ عدل کا بادشاہ ہے، وہ انصاف کا بادشاہ ہے، وہ سلامتی کا بادشاہ ہے، وہ امن کا بادشاہ ہے، اور کل کائنات کا بادشاہ ہے۔ وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ محبت کا بادشاہ ہے، وہ دولت کا بادشاہ ہے، وہ کائنات کا بادشاہ ہے۔ تو پاک کلام میں لکھا ہے کہ قدرت بھی اسی کی ہے، حشمت بھی اسی کی ہے، عظمت بھی اسی کی ہے، دولت بھی اسی کی ہے، اور سلطنت بھی اسی کی ہے۔ اسی بات کا اقرار میں اور آپ کرتے ہیں، پورا سال کرتے ہیں، اور آج ہم پوری دنیا کے ساتھ مل کر خدا یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کا اقرار کرتے ہوئے، اس کی تمجید کرتے ہوئے خدا کے گھر میں آئے ہیں تاکہ اس کے لائق اس کی بندگی کر سکے، عبادت کر سکے، عاجزی کے ساتھ دعا کر سکے۔ تو یہ کائنات کس بادشاہ نے بنائی؟ کس کا راج ہے؟ خداوندوں کے خدا، بادشاہوں کے بادشاہ، جس نے اپنے منہ کے دم سے یہ ساری کائنات تخلیق کی اور اس پر اختیار رکھا۔ وہی اختیار اپنے ایمان رکھنے والوں پر یہ اختیار اسے دیا۔ انسان کو بنایا تو انسان کو برکت دی، بڑھو پھلو پھولو اور زمین کو معمورو محکوم کرو۔ یہ کائنات اس نے ہمیں دی ہے، ہمیں اس کی پاسداری رکھنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، ادب کرنا ہے، کائنات کو، نیچر کو ضائع نہیں کرنا بلکہ اس سے مستفید ہونا ہے۔ تو جب ہم بائبل مقدس کی روشنی میں یسوع بادشاہ کو دیکھتے ہیں تو خداوند خدا جو ہے، جس کے بارے میں یوحنا پہلا باب پہلی آیت سے لکھا ہے، ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور کلمہ ہی سب کچھ اسی کے وسیلہ سے بنا اور اس کے لیے بنا۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند ہی کل کائنات کا بادشاہ ہے، وہ عدل کا بادشاہ ہے، وہ انصاف کا بادشاہ ہے، وہ محبت کا بادشاہ ہے، وہ امن کا بادشاہ ہے، وہ سلامتی کا بادشاہ ہے، جس کا اقرار میں نے اور آپ آج کے دن ساری کلیسیائیں گلی بازاروں میں، چرچز میں بلند آواز کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خداوند خدا ہی کل کائنات کا بادشاہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خدا نے کائنات بنائی، اس کے انبیاء اکرام آتے رہے، نبی پیغمبر آتے رہے، لوگوں کو لیڈ کرتے رہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں قاضیوں کا دور رہا، قاضی انصاف کرتے تھے، جیسے ہم نے ابھی اقرار کیا کہ خدا عدل کا بادشاہ ہے، قاضیوں سے وہ انصاف کرواتا تھا۔ تو ایک دور آیا حضرت سیموئیل نبی کا دور جو ہے، اس میں قوم بنی اسرائیل نے سیموئیل نبی سے کہا کہ ہمیں بھی بادشاہ بنا کر دے، جس طرح دوسرے لوگوں کی بادشاہ ہیں، ہم پر بھی کوئی حکمران ہو، بادشاہ ہو۔ سیموئیل نبی بھی رنجیدہ ہوا، خدا بھی رنجیدہ ہوا،
इस बात पर कि वो बादशाह मांगते हैं, अपने ऊपर इंसानों को मुसल्लत करते हैं, जबकि इनका खुद खुदा बादशाह है, तो इन इंसानों को अपने ऊपर मुसल्लत करना चाहते। आखिरकार खुदा ने शमूएल नबी को कहा कि इन्हें बादशाह बनाकर दे दो। तो शमूएल नबी ने शाऊल बादशाह को मसा किया कि वो इसराइल का बादशाह हो। ये पहला बादशाह है इसराइल का जिसने 40 साल हुक्मरानी की। उसके बाद दाऊद नबी को मसा किया गया कि उनका बादशाह हो। उसने भी 40 साल उन पर हुक्मरानी की। उसके बाद सुलेमान बादशाह हुआ, उसने भी 40 साल हुक्मरानी की। यानी शाऊल ने भी 40 साल, दाऊद ने भी 40 साल और सुलेमान बादशाह ने भी 40 साल। उसके बाद क्या हुआ कि सल्तनत डिवाइड हो गई, 2 कबीले एक तरफ और 10 कबीले एक तरफ। जब ताकत ना रही, इत्तेहाद ना रहा, कमजोरी पड़ गई, तो दूसरे मुल्कों ने उन पर हमला किया, उन्हें असीर बनाकर ले गए, बाबल की असीरी। तो हम देखते हैं क्या दाऊद की बादशाही इस दुनिया में है? क्या शाऊल की बादशाही है? क्या शाऊल की बादशाही है? सुलेमान की बादशाही है? बादशाह बने और खत्म हो गए। अगर फिलॉसफी की बात की जाए, इल्म की बात की जाए, तो अफलातून 40 साल रहा, अरस्तु 40 साल उन्होंने अदब की दुनिया में, इल्म की दुनिया में राज किया, बादशाह रहे। और के साथ उन्होंने भी 40 साल जो है इल्म के मैदान में बहुत नाम कमाया, लेकिन आज उनका नाम नहीं। उनसे भी बड़े बड़े फिलोसफर आ गए। क्या उनका राज आज है? दुनिया में हम देखते हैं सल्तनत उस्मानिया आई, खत्म हो गई। मुगलिया दौर आया, खत्म हो गया। हिटलर आया, खत्म हो गया। मुसोलिनी आया, खत्म हो गया। वक्त के ताकत के साथ हो गए और वक्त के साथ तहस नहस हो गए, तबाह बर्बाद हो गए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह, जिसके बारे में लूका की अंजील पहले बाब में लिखा है, फरिश्ता कहता है कि उसकी बादशाही का आखिर ना होगा, उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। हमने देखा है कि दुनिया के बादशाह आए, ताकत के साथ आए, सिकंदर आजम भी आया, दुनिया पता की, लेकिन आज कोई है इसका नाम लेवा? किसी पर, किसी जगह पर उसका राज है? नहीं। बड़े बड़े जाबर बादशाह आए हैं, हाँ वो फिरौन की सूरत में हो, कैसर की सूरत में हो, वक्त के साथ सब खत्म हो गए। लेकिन यीशु की बादशाही हमेशा से हमेशा, उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। देखिए आज भी दुनिया में किसी की बादशाही किसी खित्ते तक महदूद है, किसी की किसी खित्ते तक, लेकिन यीशु की बादशाही हर जगह पर है। जहां पर मसीह का मानने वाला है, जिस पर यीशु के राज है, जिसके दिल पर यीशु रहता है, यीशु का राज है, यीशु पर ईमान रखता है, वो यीशु की बात मानेगा, किसी और बादशाह की बात नहीं मानेगा। तो इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह ही कुल कायनात का बादशाह है, जिसका राज, जिसकी हुक्मरानी, जिसका इख्तियार सारी कायनात पर है। अब कोई माने ना माने, ये तो बात की हमने अपनी, जिन पर यीशु का राज है, जो यीशु पर ईमान रखते हैं, उन पर यीशु का राज है। इसके अलावा भी दुनिया में अक्सरियत यीशु को मानती है, ईमान रखती है किसी भी शक्ल में। दुनिया में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा तो क्रिश्चियन है, उसके बाद मुसलमान हैं। मुसलमान भी जब तक ईसा पर ईमान ना रखें, उनका ईमान ही मुकम्मल नहीं। वो भी मुंतजर है, मैं और आप यीशु के आने के इंतजार में है, मुंतजर है कि वो आएगा, दुनिया पर राज करेगा।
और उसके लिए हमें तैयार रहना है, आमदनी के लिए तैयार रहना है। लेकिन मुसलमान जो है वो भी इस बात का इकरार करते हैं कि हजरत ईसा आएंगे। अब किस तरह ईमान है, किस तरह का है, लेकिन ये बात है वो मुंतजिर हैं कि वो आएगा, यानी दूसरी आमद उसकी। अब जो तैयार पाए जाएंगे वो उसका इस्तकबाल करेंगे, और जो तैयार नहीं पाए जाएंगे वो बाहर ही रह जाएंगे। आज की अंजील मुकद्दस में भी हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अच्छे चरवाहा है, जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, अच्छी अच्छी चरागाहें चराता है, राहत के चश्मों के पास ले जाता है, हमारी जिंदगी को बहाल करता है, अच्छी चरागाह चलाता है, सेहतमंद जिंदगी देता है। लेकिन एक वक्त आता है कि जब वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा। आज मुझे और आपको अपनी अपनी जिंदगी में देखना है कि आया मैं भेड़ों में शामिल हूं या बकरियों में। मेरा अच्छा चरवाहा यीशु है जो जुदा करेगा आने वाले वक्त में। और जो भेड़ें होंगी दाहिनी तरफ और बकरियां बाएं तरफ, यानी राइट हैंड की तरफ कौन होंगे? रास्तबाज लोग। राइट का मतलब राइट दुरुस्त भी है, सही सिंबल। राइट ताकत की अलामत है, कुव्वत की अलामत है, इख्तियार की अलामत है। कि जो दाहिनी तरफ होंगे, राइट साइड होंगे, राइट हैंड होंगे, वो कुव्वत भी पाएंगे, इख्तियार भी पाएंगे, और यीशु जैसी कुदरत और कमाल भी रखेंगे। और जो बाएं तरफ होंगे, लेफ्ट हो गया, छोड़ गया। जिन्होंने इस दुनिया में यीशु को लेफ्ट किया है, छोड़ा है, उस वक्त वो भी लेफ्ट में होंगे। हमें देखना है, अपनी अपनी जिंदगी को परखना है कि मैं दाएं तरफ होगा या बाएं। जो दाहिनी तरफ होंगे वो इख्तियार पाएंगे, बाएं तरफ वाले हमेशा के अजाब में डाले जाएंगे। और उसके लिए वो सारी बातें भी मेंशन की हैं जो इस दुनिया में रहते हुए करते हैं। इस दुनिया में जो कुछ हमने कमाया है, यीशु फरमाता है, मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पीने को दिया, मैं परदेसी था तुमने मेरी खातिरदारी की, मैं कैद में था तुम मेरी खातिरदारी की, मुझे देखने आए, मैं बीमार था मेरी इबादत की। और बाएं तरफ वाले जो होंगे उनके साथ भी ऐसा ही है। और वो कहेंगे कब खुदावंद तो आया। पहले वाले भी कहते हैं कब खुदावंद तो आया है। तो यीशु ने कहा कि इन छोटों में से किसी के साथ किया तो मेरे ही साथ किया। बाएं तरफ वालों से वैसे ही सवाल, वैसी ही बातें हैं। और वो भी इस ख्याल में पड़ गए हैं कि खुदावंद तो कब हमारे पास आए, कब हमने तुझे नंगा देखा, भूखा देखा, प्यासा देखा, बीमार देखा और तेरी इजाजत ना की, खातिरदारी ना की। तो यीशु उनसे भी कहता है कि अगर तुमने इन छोटों में से किसी के साथ ना किया तो मेरे साथ मलाउनो हमेशा की आग में चले जाओ। दाएं तरफ वाले, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उसे निराश में लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए प्यार की गई है। ठीक है, तो इस दुनिया में हमें देखना है कि हम किसके पैरोकार हैं, रास्ते की जिंदगी बसर करते हैं या न रास्ते की, मौत की राह पर है या जिंदगी की राह पर, नेकी की राह पर है या बदी की राह पर है, यीशु के पैरोकार है या शैतान के पैरोकार है। फैसला इधर ही हो जाता है। अगर आज हम परखेंगे अपने आप को तो खुदा की तरफ रज्जू लाएंगे तो खुदा बाकमाल है, खुदा लश्करों का खुदा है, खुदा अमन का बादशाह है, खुदा सुलह का बादशाह है। वो मेरी और आपकी जिंदगी में पाकरों के वसीला से हमें बहुत सारे रवैये किरदार अदा करता है ताकि हम खुदा के कलाम पर अमल करके उसकी खुशनुदी पा सके, खुदा की दाहिनी तरफ बैठ सके, जैसे खुदावंद यीशु मसीह बाप के दाहिने हाथ बैठा है।
ہم بھی دہلی طرف والوں میں شمار کیے جائیں. مسیح خدا بند کے وسیلہ سے.